Hello students, welcome back. So this is our very first class of class 11 mathematics, and the first chapter is sets. What is the first chapter? It's sets. This is chapter number 1. Okay, let us start the learning process. Sets. What a set is. Let us go through the definition first. A collection of well-defined objects. What I say? A collection of well-defined objects is called a set. In singular form it is set, and if it is more than one, it's sets. Is that clear? Now we have some confusion about what well-defined is. What sort of things are called well-defined? For that, I'll explain what well-defined is by giving you an example. Alright? So, the color of rainbow. Rainbow का color क्या होता है? Basically, Vibgyor. V-I-B-G-Y-O-R. Vibgyor. This V stands for violet. Yeah. I stands for indigo. B stands for blue. G stands for green. Y stands for yellow. O stands for orange. And R stands for red. Okay. मैं कर क्या रहा हूँ? मैं ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि well defined किसको बोलते हैं. The definition of a set is a collection of well defined objects. Well defined objects का collection को हम लोग क्या बोलते हैं? Sets. क्या बोलते हैं? Sets. Just a minute. So, again I am saying, what is a set? A collection of well-defined objects. A collection of well-defined objects is called set. Now, here comes the term well-defined. Well-defined किसको बोलेंगे? वो समझते हैं. चलो, एक example देखो. Vibgyor. It's the color of the rainbow. Rainbow का color है Vibgyor. V stands for violet, I stands for indigo, B stands for blue, G stands for green, Y stands for yellow, O stands for orange, and R stands for red. अगर ध्यान से सुनो, कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा यहाँ पे. The first one is question number 1. What is your favorite color? Favorite color. आपका favorite color क्या है? अगर मैं पूछूं, तो some of you may say red, some other may have their choice as green, and yellow say, okay, and some others may have indigo. So, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ. I'm going to explain what well-defined is. The color of rainbow is Vibgyor, violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. अगर मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछ दूँ, What is your favorite color? तो आप में से किसी का फेवरेट कलर रेड हो सकता है, किसी का फेवरेट कलर ग्रीन एंड येलो हो सकता है, किसी का फेवरेट कलर इंडिगो हो सकता है, लाइकवाइज. ठीक है, तो ये है आप लोगों का चॉइस. पर्सन वाइज में चॉइस अलग अलग हो सकता है, बट ये जो आपके चॉइस है इसको कलेक्शन बोला जाता है. हर डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट पर्सन्स उनका चॉइस अलग अलग हो सकता है. दैट इज कॉल्ड कलेक्शन. जैसे कि आपका अपना कलेक्शन होता है ना अपने चॉइस के हिसाब से, उसी तरीके से कलर का चॉइस भी आपके हिसाब से उसको कलेक्शन बोला जाएगा. फाइन, बट आप इसको सेट नहीं बोल सकते क्योंकि पर्सन वाइज में डिफर करते जा रहा है चॉइस. Now, Vibgyor,
अगर मैं आपको पूछूं व्हाट आर द कलर्स इन अ रेनबो, द कलर्स इन अ रेनबो आर ऑल दिस। तो एक बात बताओ मुझे, जब रेनबो का कलर बोलेगा तो आप में से सब एग्री करोगे कि नहीं कि ये मीन्स जो चीज सबके लिए अप्लीकेबल है उसका कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन। और जो पर्सन वाइज डिफर करता है वो वेल डिफाइंड, दैट इज जस्ट कलेक्शन। तो एक ऐसा चीज जो सबके लिए अप्लीकेबल है, सबके लिए जवाब एक ही होगा, फॉर ईच एंड एवरी पर्सन इफ द आंसर इज द सेम देन दैट इज कॉल्ड वेल डिफाइंड कलेक्शन। ओके, एंड अगर पर्सन वाइज डिफर कर जाता है दैट इज नॉट वेल डिफाइंड, हर कोई पर्सन के हिसाब से डेफिनेशन चेंज होते जाएगा। तो जो वेल डिफाइंड नहीं है दैट इज जस्ट कलेक्शन, और जो सबके लिए एप्लीकेबल है, हर इंसान के लिए एप्लीकेबल है, दैट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन, and that well defined collection is called what, set. So what is the set of colors in a rainbow? बोलने से आप में से सब और हम भी क्या बोलेंगे, the collection of the colors in a rainbow are violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. तो जो चीज सबके लिए एप्लीकेबल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, well defined। और जो चीज पर्सन वाइज डिफर कर जाएगा वो वेल डिफाइंड नहीं है, उसका डेफिनेशन पर्सन वाइज चेंज होते जाएगा, तो दैट कैन नॉट बी अ सेट, दैट जस्ट रिमेन्स नियर अ कलेक्शन, दैट कैन नॉट बी वेल डिफाइंड, पर्सन वाइज द चॉइस में डिफर। तो शायद आप लोग को समझ में आया होगा सेट किसको बोला जाता है। सेट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन जो हर एक पर्सन के लिए एप्लीकेबल हो, पर्सन वाइज में जो चीज डिफर ना करे, दैट इज व्हाट सेट इज। शायद आप लोग को समझ में आया। अभी इसको मैं मिटाता हूं, उसके बाद हम लोग चलते हैं जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अभी एक बात बताओ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बोलने से मेरे लिए नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 etc etc है। चलो ठीक है, मेरे लिए नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो आप में से किसी एक के लिए नेचुरल नंबर क्या 5 से स्टार्ट होगा क्या? नहीं होगा ना, ऐसा तो नहीं होगा। नेचुरल नंबर क्या से स्टार्ट होगा आपका, हर किसी के लिए क्या से स्टार्ट होगा, 1 से, और कभी फिनिश्ड नहीं होता है। That means for each and every person natural number starts with 1 and it never ends. तो ये हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर, वो वेल डिफाइंड है। मैं नेचुरल नंबर बोलने के साथ साथ एक परसेप्शन आता है दिमाग में कि नेचुरल नंबर स्टार्ट्स विथ 1 और ये हर किसी के लिए एप्लीकेबल है, तो ये हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, शायद आप समझ में आ गया होगा वेल डिफाइंड क्या है। वन मोर थिंग, सेट ऑफ वावल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, दोनों से ए ई आई ओ यू। अच्छा एक बात बताओ आप लोग, जो सेट ऑफ वावल्स बोलने से सपोज फॉर मी इफ द वावल्स आर ए ई आई ओ यू, आप में से कोई एक बंदा ऐसा है जिसके लिए ए जो वावल नहीं है? ऐसा तो है नहीं, हर किसी के लिए वावल जो क्या है ए ई आई ओ यू। वावल बोलने के साथ साथ हमारे दिमाग में क्या आएगा, एक कुछ डेफिनेट कैरेक्टर्स आएंगे, जो कैरेक्टर्स मेरे लिए वावल के लिए एप्लीकेबल हो रहा है वो आपके लिए भी एप्लीकेबल होगा। सो दिस इज व्हाट सेट ऑफ वावल्स। तो द समरी इज वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, फॉर ईच एंड एवरी पर्सन द कलेक्शन इज द सेम। हर एक इंसान के लिए अगर वो पर्टिकुलर कंडीशन का कलेक्शन सेम होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेट। पर्सन वाइज चीज वेराई नहीं करना है। अगर पर्सन वाइज चीज वेराई करता है तो इसका मतलब क्या है, वो सेट नहीं है, दैट इज जस्ट कलेक्शन। नाउ होप यू अंडरस्टूड व्हाट अ सेट इज। सेट मतलब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन, और वो पर्सन वाइज चेंज नहीं होगा, थ्रू आउट सबके लिए वो कलेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा, दैट इज व्हाट सेट इज। ओके, अभी आप लोगों को सेट समझ में आया, तो नोटेशन, नोटेशन में चलते हैं, NOTATION, नोटेशन। नोटेशन मतलब सेट का नाम क्या देंगे, हर एक सेट का अपना एक नाम दिया जाता है। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से नोटेशन देना है, कैपिटल लेटर,
क्या लेटर से देना है? कैपिटल लेटर से नोटेशन देना है, कैपिटल लेटर। कुछ वेल नोन सेट्स का बारे में बताता हूँ, सम वेल नोन सेट्स, सम वेल नोन सेट्स। ओके, ध्यान से सुनो। जैसे कि n, एक सेट का नाम अगर n दे रहा हूं, दिस n stands for natural number. n stands for what? Natural number. z stands for integer. z stands for what? Integer. Okay. r stands for rational number. r stands for what? Rational number. And q stands for rational. Sorry, I have done a mistake there. Let me clarify the things. r stands for real number. r stands for what? Real number. q stands for rational number. q stands for rational number. w stands for whole number. w stands for what? Whole number. Okay. Similarly, if it is z positive, if it is z positive, it means positive integer. Positive integer. If it is z negative, it's negative integer. Negative integer. If it is r positive, that says positive real number. What I say is positive real number, etc. etc. तो ये नोटेशन नेचुरल नंबर का सेट को दिखाने के लिए उसका नाम क्या लोगे आप? n, इंटीजर दिखाने के लिए z, रियल नंबर दिखाने के लिए r, रेशनल नंबर दिखाने के लिए q, होल नंबर शो करने के लिए w, पॉजिटिव इंटीजर दिखाने के लिए z पॉजिटिव, टू शो द नेगेटिव इंटीजर्स z नेगेटिव. Similarly for positive real number it's r positive. If it is positive rational number then q positive. If it is negative rational number then it is q negative. इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रखना आप लोग. ये वेल नोन सेट्स हो. जो वेल नोन नहीं है उनके लिए आप अपना मर्जी से कोई भी एक नाम दे देना, जो कि क्या में होना चाहिए? कैपिटल लेटर में. क्या में होना चाहिए? कैपिटल लेटर, ब्लॉक लेटर. स्क्रीनशॉट ले लो एक इसका. स्क्रीनशॉट लिया आप लोगों ने? स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप नोट मेकिंग कर सको. तो ये नोटेशन मतलब क्या है? सेट का नाम क्या दिया जाए. तो कुछ फिक्स्ड है, जैसे कि नेचुरल नंबर के लिए n, इंटीजर के लिए z, लाइकवाइज. और जो फिक्स्ड नहीं है उनको आप अपनी मर्जी से कोई भी एक कैपिटल लेटर से नाम दे देना. दैट्स इट. ये हो गया नोटेशन. अभी नोटेशन के बाद चलते हैं हम लोग प्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स. क्या बोला ये? प्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स. सेट्स को कैसे प्रेजेंट किया जाता है? सेट्स को हम लोग दो तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं. वी कैन एक्सप्रेस सेट्स इन टू डिफरेंट वे. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द रोस्टर फॉर्म. ROSTER, रोस्टर फॉर्म. And the second one is set builder form. क्या बोला? set builder form. The first one is roster form and the second one is set builder form. मतलब कोई भी एक सेट को अगर आपको एक्सप्रेस करना है तो कितने अलग अलग तरीके से सेट को आप एक्सप्रेस कर सकते हो या प्रेजेंट कर सकते हो, वो बेसिकली दो टाइप का होता है. द फर्स्ट वन इज द रोस्टर फॉर्म एंड द सेकंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म.
अब ये रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, एक एग्जांपल लेते हैं, टेक एन एग्जांपल, टेक एन एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलो फर्स्ट वन इज, सपोज एक ही एग्जांपल लेंगे, सेट ऑफ वावल्स, सेट ऑफ वावल्स, सेट ऑफ वावल्स। ओके, तो हम सबको मालूम है सेट ऑफ वावल्स क्या होता है, बड़ा लिख देता हूं थोड़ा, ए ई आई ओ यू, ये सेट ऑफ वावल्स हैं, दीज आर द वावल्स। अभी अगर इसको रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, चलो सेट का नाम दे देते हैं वावल्स, वी दे दो, चलो सेट का नाम वी दे दे, ओके। तो रोस्टर फॉर्म में करना क्या है कि सेकंड ब्रैकेट, जिसको कर्ली ब्रैकेट बोला जाता है, ऐसे, ओके। कर्ली ब्रैकेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सबको लिखो, ए ई आई ओ यू। ध्यान से सुनो, सेट ऑफ वॉवल्स बोलने के साथ साथ हमारे दिमाग में क्या आया, ए ई आई ओ यू। नाउ हाउ टू एक्सप्रेस दिस सेट ऑफ वॉवल्स इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में सेट ऑफ वॉवल्स को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे। Now the pattern to express the set of vowels in roster form is to keep all these characters within the curly bracket, second bracket के अंदर में रखना है, and all the characters must be separated by comma। क्या से सेपरेट करके रखना है, कोमा से सेपरेट करके रखना है, ओके। अभी ये जो सेट है, ये सेट के अंदर में जितने भी कैरेक्टर आए हुए हैं, हर एक कैरेक्टर को हम लोग एलिमेंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हर एक कैरेक्टर को हम लोग एलिमेंट्स बोलेंगे। सो हाउ मेनी एलिमेंट्स वी हैव देयर इन दिस सेट, 1 2 3 4 5। हाउ टू एक्सप्रेस these vowels in roster form, we have to give a name, say vowels, इसलिए v नेम दे दिया, एंड इट्स नॉट मैंडेटरी कि v दो, आप a भी लिख सकते हो, b भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, and we must enlist all the characters within a curly bracket being separated by what, comma। This pattern is called roster form। अभी यही चीज सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो चलो फिर से नाम v दे दो, दे दिए, वावल का ही है, पहले रोस्टर फॉर्म में दिखाया, अभी सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाते हैं। तो वावल को सेट बिल्डर फॉर्म में कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करना, ऐसा लिखना, x is such that, कैसे पढ़ोगे, x is such that x is a vowel, x is a vowel। The difference between roster form and set builder form is, roster form में ये सेट के सारे एलिमेंट्स को हमें एक्सप्रेस करना होता है, ऑलराइट। एंड सेट बिल्डर फॉर्म में हमें क्या करना होता है, सारे एलिमेंट्स को एनलिस्ट नहीं करना है, एक सुइटेबल सेंटेंस के जरिए इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो मैंने क्या किया, सेट ऑफ वावल्स था इसलिए नाम v दे दिया, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया, x is such that, मतलब ये सेट में x है और x जो एक्चुअली क्या है, वावल, तो x is a vowel बोलने के साथ साथ ये सारे कैरेक्टर्स उसके अंदर आ जाते हैं। सो दिस इज द वे टू एक्सप्रेस अ सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म, एंड दिस इज द वे टू एक्सप्रेस अ सेट इन रोस्टर फॉर्म। होप यू गाइस अंडरस्टूड, आप लोग को शायद समझ में आया होगा। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, ठीक है, और आप लोग बैक होम ट्राई करना, कुछ सेट्स बना के मुझे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर में सेंड करना, सर ये सही है कि गलत है पूछना। And my personal WhatsApp number is 8732897906. This is my personal WhatsApp number, and my name is Prakash sir. So this is our first class. First class में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं कराते हैं आप लोगों को, हम लोग फर्स्ट क्लास में चीज़ को इतना में समझते हैं। We'll start the learning in a full-fledged manner from tomorrow onwards. Sunday there will be off day. From Monday we'll have a full-fledged class of 30 minutes.
होप यू गाइज अंडरस्टूड। थैंक यू फॉर वाचिंग। और मेरे पर्सनल नंबर में आप लोग बोलना कि क्लास कैसा लगा। और मैंने आप लोगों को एक टास्क दिया है, जैसे मैंने वॉवेल का सेट बना के रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाया, सिमिलरली आप कुछ ऐसे सेट्स बना के रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप करना। ऑलराइट, बाय बाय।